So first of all, what we are doing, we want to calculate here in this the mean, standard deviation, and this one, mean, standard deviation, and coefficient of variance. This information is given. So we will use this equivalent formula of this standard deviation. इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. वो कैसे करेंगे वो देखेंगे. ऑलरेडी वी हैव सीन इन द प्रीवियस वन. यहाँ पे हमने ये जो फॉर्मूला था हमारा वेरिएंस का, इसका ब्रैकेट ओपन करके देखेंगे. ये वाली टर्म और ये जो हमको मिली ये वाली टर्म दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमको सिग्मा अपॉन एक्स मीन इंटू 100 करना है. तो सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन्स इसका स्क्वायर रूट लेना है हमको. सो व्हाट विल डू इज व्हाट एवर गिवन वैल्यू हियर, उसके लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, क्या है रिक्वायरमेंट. फॉर दैट वी रिक्वायर, ये फॉर्मूले में देखो f इंटू एक्स स्क्वायर, तो f इंटू एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे. फिर बाद में x मीन हमको लग रहा है, तो x मीन के लिए f इंटू एक्स करेंगे. यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है x मीन का. So we'll do the same. So first of all, put up all the intervals. So first interval is 0 to 10. So this is 0 to 10. Likewise 10 to 20, 10 to 20, and 20 to 30, and 30 to 40, and this last one 40 to 50, 40 to 50. So we'll take the middle values. 0 plus 10 divided by 2, 5. This is 15. This is 25. This is 35. And this is 45. These are the middle values and the frequencies. 14, जो क्वेश्चन में गिवन है, 23, 27, 21, and 15. So these are the all frequencies given to us. So what we will do is just for calculating mean calculate करने के लिए यहाँ पे ये दोनों को multiply करेंगे. So tell me the multiplication. First f into x. So this is what? 70. Next one 23 into 15. 3, 4, 5. So this is 3, 4, 5. Next one 27 into 25. What it would be? Okay, 6, 7, 5. Then this 21 into 35. 7, 3, 5. And this last one 15 into 45. 6, 7, 5. So these are the multiple of f into x. और हमको यहाँ पे summation of f लगता है. So we will do the same for calculating summation of f into summation of fx. So tell me summation of frequencies. यहाँ पे जो पूरी frequencies है, इसका summation क्या होगा? ये frequency. This is okay. This is 100. In the similar way, ये दूसरा कॉलम जो है मीन कैलकुलेट करने के लिए इसका हम. So the addition of all these entries is, yes, क्या? 2500. Okay. So 2500. So this is for the mean. अब इससे हम मीन कैलकुलेट कर ले सकते हैं. समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ हमारे पास मिल जाएगा. सो विल कैलकुलेट इजीली दैट मीन. सो यहाँ पे मीन हम करेंगे बाद में कैलकुलेट. पहले ये टेबल की जो इंटर वैल्यूज है, ये फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके मीन कैलकुलेट कर लेंगे. क्या आ रहा है? दिस इज 20. ओके, 2500 डिवाइडेड बाय 100 है सिंपली. सो दिस इज इक्वल्स टू 25. ओके, नो डाउट. तो हमने मीन फाइंड आउट कर लिया. वी गॉट द वैल्यू ऑफ द मीन हियर. Now we can substitute here in this formula mean, but here we require summation of fi into x square, xi square. तो ये x के पूरे स्क्वायर्स बोलो. ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25. 15 का स्क्वायर
256. Sorry, 225. And this 25 square is 625. 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225 and 45 का स्क्वायर, yes, this is 205. So this is the value of x square. Now what we'll do is f के जो values है 14 into इसको multiply करेंगे 14 into x square. Tell me what it would be. 14 into 25. This will be 350, right? Check it. And 225 into this 23. Value of this frequency into this x square. So this is what 225 into 23. This would be 5175. Okay, good. Now 625 into 27. F की value 27 है, x square 625. So the multiple of this would be what? Tell me. What would be the multiplication of these? This is 16875, right? Now again multiply this 1225 into this 21. What it would be? 1225 into 21. Calculate करो simply calculator में. 1225 into 21. कितना टाइम लग रहा है क्या कैलकुलेट करने में? And the last one 2025 into 15. 30375. अब ये सब का एडिशन हमको रिक्वायर है, so we have to take the addition of all these. 500. So this addition, if you observe, will be 78500. Okay, so this is 78500. So what we'll do is we'll substitute this value fx square and this all these things into our formula. So we got, so directly square root के अंदर भी रख सकते हैं, कोई issue नहीं है. But we have standard deviation in square root of this variance. So if we substitute here, this will be here. I'll put up this one. Standard deviation will be the summation of this fx square divided by n minus x mean square, and we obtain here what the value of fx square is 78500, and this summation of n का मतलब क्या है? Summation of f frequency के values को addition को हम बोलते हैं n. So this is the value. Put up this into the formula. So this will be 78500 divided by 100 minus mean, this we have got is 25. Mean 25 will, so 25 square. Now calculate this difference and square root. Tell me what is the standard deviation you are getting. और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25.
देखो एक बार चेक करो, 78500 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25 स्क्वायर है, 25 स्क्वायर अगर नहीं दिया तो प्रॉब्लम है। 25.29 आ रहा है आप लोगों का। So let me check in my calculator. So this is 750. क्या आ रहा है? हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन की मेथड दूसरी है, लेकिन अभी हमने स्टार्ट कहाँ से करे थे? फॉर्मूला देखे ना, वन सिक्स जीरो। स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है? स्क्वायर रूट के अंदर 160 आ रही है क्या? The value of the square root is what? Yes. स्क्वायर रूट हम कैसे लेते हैं? जस्ट पुट डाउन। हाँ ठीक है, बंद कर देना। सो 160 आ रहा है और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, 160 का स्क्वायर रूट लेंगे, सो दैट विल बी व्हाट? 25। हाँ 12.64 आएगा ना, 125 या फिर 25 कैसे आ रहा था? दिस इज अंडर द स्क्वायर रूट 160 एंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 160 विल बी हियर 12.64 या 64 या 65 जो भी रहे। So this I will write out as a square root 160 and this is equals to 12.64. So we can write out sigma as 12.64. 12.64. So finally standard deviation we got और x mean भी मिल गया हमारे पास. So just put up this into this formula, coefficient of variance. Coefficient of variance is standard deviation upon x mean divided by x mean into 100. So the coefficient of variance for this 12.64 divided by 25 into 100. So what is the value now? Yes, 50.56. So here we are putting this value, this one. ठीक है, मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को. Then what is the meaning you will get? First of all, what was given is we have to calculate the mean, standard deviation and coefficient of variance. तो हमने ये इक्विवेलेंट फार्मूला भी देखे स्टैंडर्ड डेविएशन का. इससे पहले कुछ को भी डाउट आ रहा है अभी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा मेथड देखे हमने, ये वाला मेथड. इसके अंदर हमने ये फार्मूला देखे, तो ये फार्मूले से भी आ जाएगा आपको. इससे आपको अगर करना है तो इससे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा. आइदर यू कैन यूज दिस वन, और अभी हमने इसको एक्सपांड करके सिंप्लीफाई करे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स मीन स्क्वायर. इसका फायदा क्या है, हमको सब्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ रहा, डेविएट नहीं करना पड़ रहा और माइनस नहीं करना पड़ रहा. इससे बेनिफिट ये हो रहा है, खाली क्या करना है, f और x को मल्टीप्लाई करके मीन फाइंड आउट कर लेंगे और f और x स्क्वायर को फाइंड आउट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. So first of all, for calculating standard deviation we require the square root of this. Square root का ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन के, समेशन ऑफ f x स्क्वायर अपॉन n माइनस x मीन स्क्वायर. सो यहाँ पर हमारे पास मीन फाइंड आउट करने के लिए ये रूल है, समेशन ऑफ f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय f. तो हमने पूरे मल्टीप्लाई किए x के वैल्यू, मिडल वैल्यूज फाइंड आउट करके f से,
और एफ एक्स जो भी आया उसको ऐड कर दिए, एफ ऐड कर दिए, सो दैट इज 2500 डिवाइडेड बाय 100। इसको यहाँ फॉर्मूले में पुटअप किए एक्स मीन के, सो वी गेट एज 2500 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 25। तो ये मीन मिल गया हमको। अब मीन मिल गया तो खाली ये वाली वैल्यू रिक्वायर है, इसलिए हमने एक्स के जो भी वैल्यूज थे उनका स्क्वायर लिए, 25 का स्क्वायर 25, 225 लाइकवाइज सबका, और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू मिली। सबको ऐड कर दिए, 78500 मिला। तो ये जो फॉर्मूला था हमारा, इसके समेशन मिल गया, और n मतलब समेशन ऑफ f है, उसको रख दिए हमने n के अंदर, दैट इज 100। और ये x मीन ऑलरेडी इससे पहले कैलकुलेट किए यहाँ पे 25, उसको रख दिए। सो अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये स्क्वायर रूट में 160 मिला, मीन्स 12.64। So finally what we got is standard deviation sigma is equals to 12.64। तो हमारे पास क्वेश्चन में तीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला उसने, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो हमने मीन फाइंड आउट कर लिए, दैट इज 25, स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो 12.64, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा मींस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स मीन, मीन इनटू 100। तो हमने पुट अप किए वैल्यूज, सिग्मा इज 12.64 डिवाइडेड बाय 25 is the mean into 100. So if you calculate this, you are getting 50.56, right? So this is the way in a simple table we got the three values, mean, standard deviation and coefficient of variance। ठीक है, ये समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो आप पूछो। Calculating the standard deviation of this information, what you have to follow? You have to follow the previous, first of all, the formula. Standard deviation find out करना है। So for the standard deviation, we have this formula, summation of f of I upon x जो भी है। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है किसी की भी, तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी हटा देते और डायरेक्टली विदाउट फ्रीक्वेंसी के जो वैल्यूज आती उस वैल्यू को हम यूटिलाइज कर सकते। सो नाउ द फॉर्मूला विच ऑलरेडी वी हैव यूज्ड विल बी कन्वर्टेड। ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास कौन से फॉर्म में, विदाउट फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में। तो ये एक चीज याद रख लेना आपने कि जहां पर भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो वो फ्रीक्वेंसी हटा देने का, टेंशन नहीं लेने का ज्यादा। सो दिस गिवन फॉर्मूला विल बी कन्वर्टेड इन दिस फॉर्मेट, हियर दिस वन, समेशन ऑफ, यहाँ पे f हट के एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, n मतलब यहाँ पे अब नंबर, फ्रीक्वेंसी नहीं है मतलब नंबर, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है समेशन ऑफ f पूरे फ्रीक्वेंसी का एडिशन कैपिटल N होगा, और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है वहाँ पे सिर्फ काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर n का वैल्यू हो जाएगा। और मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्टली आपको पता है मीन ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन इज समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये वाला मेथड है आप लोगों के पास। सो द मीन विल बी डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट। तो जब आपके पास अगर इस टाइप के फॉर्मूले इजीली रहेंगे तो करना क्या है आपको क्लियर रहेगा, क्लियर कट। सो मीन यू विल इजीली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, मीन समेशन ऑफ x पूरे x का एडिशन डिवाइडेड बाय n, फिर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x मीन स्क्वायर। So calculate this standard deviation, ये information का standard deviation find out करो, do it fast।